بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ اب تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ نہیں دیکھا، پر وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ ہے نہیں، تو ہم دیکھ بھی نہیں پائیں گے حضرت پر۔ سیریل وائز سے کاؤنٹ کرتے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ تو سب سے پہلا سوال آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ تو لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھے، ان کا نام حضرت لوط علیہ السلام تھا۔ یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویڈیو میں بھی دیکھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، بلکہ علماء کے اور پرانی کتابوں کے یعنی کہ بائبل کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ لیکن قرآن حدیث میں کے مطابق اگر دیکھیں تو علماء کے مطابق بھی، اکارڈنگ ٹو اسلامک اسکالرس کے مطابق بھی، اگر پچھلی کتابیں دیکھیں یا ہسٹری کے بکس دیکھیں تو اس کے حساب سے اسلامک اسکالرس کے اکارڈنگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ بٹ قرآن اور حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی جگہ کیا تھی۔ جگہ کا نام بھی ایگزیکٹلی مینشن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکارڈنگ ٹو اسکالر بیبیلون شہر میں عراق میں پیدا ہوئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام بھی وہیں ہوئے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں الگ الگ جگہ ہجرت کر گئے تھے، مائگریٹ کر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا موسٹ پروبیبلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کینان کی طرف مائگریٹ کرے تھے، اور علماء کے انوسار حضرت لوط علیہ السلام سوڈوم نام کے ایک شہر میں مائگریٹ کرے تھے، جو عرب کا ہی ایک شہر تھا، وہاں پر ہجرت کر گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ تو ہم دیکھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہم نے دیکھا کہ تمام نبیوں کے جو قوم تھے ان کا گناہ شرکی تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ جو تھا وہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کیا کرتی تھی۔
इनकी कौम का गुनाह शिर्क नहीं था, ये लोग हम जिन्स परस्ती क्या करते थे। यानी किस तरह से शुरू होती है इनकी, कुरान में देखते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने और हम इब्राहिम को और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने बरकतें रखी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम से, वहां से, बेबीलोन से निकाल कर हिजरत करने का हुक्म दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम केनान की तरफ गए थे, लूत अलैहिस्सलाम सोराम की तरफ गए थे। और हम इब्राहिम को और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने बरकतें रखी हैं, सब जहां वालों के लिए, तमाम जहां वालों के लिए बरकतें रखी थी उस जमीन पर। यानी कि शाम की कोई जगह थी, शाम की प्लेस पे कैनान, कैनान तो शाम की प्लेस पे है, सोलम भी वहीं पर कहीं पर था। और हमने उसको इसहाक अता फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। इसहाक अलैहिस्सलाम उनके छोटे बेटे का नाम था। और याकूब उस पर मजीद, याकूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते का नाम था। और उन सबको हमने साले बनाया, यानी कि नेक बनाया। साल तम वो सब क्या थे, नेक बंदे थे अल्लाह के। और हमने उन्हें इमाम बना दिया जो हिदायत देते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इसहाक अलैहिस्सलाम को क्या किया, इमाम बना दिया। इमाम बनाया मतलब कि स्कॉलर या फिर इमाम, जो भी हिदायत देते थे, वो लोग हिदायत दिया करते थे, सही रास्ते की तरफ बुलाते थे। और हमने उन्हें इमाम बना दिया जो हिदायत देते थे और हमारे हुक्म से, और हमने उनकी तरफ वही की, नेक काम करने की, नेक काम करने की वही की, कि नेक काम करो। और वो क्या क्या थे, नमाज कायम करने की और ज़कात अदा करने की। तो तौहीद, नमाज और ज़कात, यही शुरू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तमाम लोगों से यही हुक्म होते आया है अभी तक आगे। नमाज, ज़कात, रोज़ा करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की। और वो सब के सब हमारी बंदगी करने वाले थे। वो सब क्या थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और लूत को हमने हुक्म और इल्म अता फरमाया। लूत को क्या किया, अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और इल्म दिया। और हमने उसे निजात दी उस बस्ती से, उस बस्ती से जो बस्ती में लूत अलैहिस्सलाम भेजे गए थे, सदोम की बस्ती में। और लूत को हमने हुक्म और इल्म अता फरमाया, और हमने उसे निजात दी उस बस्ती से जो गंदे काम करती थी। यकीनन वो निहायत बुरे और नाफरमान लोगों की कौम थी। उस बस्ती से, वहां से निकाल ले गए लूत अलैहिस्सलाम को, जो गंदे काम करती थी, यानी कि हम जिन्स परस्ती क्या करती थी। निहायत बुरे और नाफरमान लोगों की कौम थी। ये क्या है, बहुत बुरे और नाफरमान लोग थे वो लोग। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या किया, अपनी रहमत में दाखिल किया। यकीनन वो साले बंदों में से था। साले यानी कि नेक बंदों में से था। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदों में से थे। और लूत जब उसने कहा अपनी कौम से, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो, यानी कि ऐसी बेहयाई के काम कर रहे हो। लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सही हक की तरफ बुलाते हुए कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, ऐसी बेहयाई के काम करते हो जो तुमसे पहले तमाम जहां वालों में से किसी ने भी नहीं की थी। तो तुमसे पहले किसी ने भी नहीं की थी, तमाम लोगों में से किसी ने नहीं की थी। तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़कर। तुम क्या करते हो, शहवत के लिए मर्दों के पास जाते हो औरतों को छोड़कर। बल्कि तुम तो हो ही हद से तजावुज करने वाली कौम। तुम क्या हो, हद से बढ़ने वाली, तजावुज यानी कि हद से बढ़ने वाली कौम हो, लिमिट क्रॉस करने वाली, हद से बढ़ने वाली कौम हो। तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हो ही हद से तजावुज करने वाली कौम। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो नहीं था उसकी कौम का कोई जवाब सिवाय उसके कि इन्होंने कहा, निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग बड़े
पाकबाज बनते हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि ये बहुत अच्छे लोग बनते हो, बहुत पाक लोग बन के पाक बातें अच्छे बातें कर रहे हो, बहुत पाक बात कर बन रहे हैं लोग, निकालो इन लोगों को यहाँ से, जरूरत नहीं है, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तरह से लूत अलैहिस्सलाम को कहा। तो नहीं था उसकी कौम का कोई जवाब सिवाय उसके कि इन्होंने कहा, निकालो इनको अपनी बस्ती से, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। तो हमने निजात दे दी उसको और उसके घर वालों को। तो लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या किया, लूत अलैहिस्सलाम को और लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को निजात दे दी, घर वालों को बचाया। तो हमने निजात दे दी उसको और उसके घर वालों को, सिवाय उसकी बीवी के, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी उनके ऊपर, उसकी बीवी के, वो हो गई पीछे रहने वालों ही में। तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर भी वो अजाब आया जो बाकी लोगों के ऊपर उस कौम में आया था। और हमने बरसाई उन पर एक बारिश, तो देखो क्या अंजाम हुआ मुजरिमों का। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, अजाब में उनके ऊपर एक बारिश बरसाई, और ये बारिश कोई आम बारिश नहीं थी, ये पत्थरों की बारिश थी। अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर पत्थरों की यानी कंकरों की बारिश की थी, पत्थरों की बारिश की थी। अगर साइंटिफिक भाषा में हम देखें तो हो सकता है कॉमेट्स थे या एस्ट्रॉइड्स थे, अब वो अल्लाह आलम। पर पत्थरों की बारिश थी, नॉर्मल पानी वाली बारिश नहीं थी, पत्थरों की बारिश थी, हम वो आगे देखेंगे। और हमने बरसाई उन पर एक बारिश, तो देखो क्या अंजाम हुआ मुजरिमों का, मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जुटलाया लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी रसूलों को, जुटलाया लूत की कौम ने भी रसूलों को, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी क्या क्या, रसूलों को झुटलाया, उनका कहा नहीं माना। जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने कि क्या तुम डरते नहीं हो, क्या तुम लोग डरते नहीं हो, मैं यकीनन तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। तो लूत अलैहिस्सलाम क्या ने क्या कहा, क्या तुम लोग डरते नहीं हो, मैं यकीनन, लूत अलैहिस्सलाम क्या है, एक अमानतदार यानी कि एक सच्चे रसूल है। बस तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो यानी कि अल्लाह की बात मानो और मेरी इताअत करो और मेरी बात मानो, अल्लाह पर भरोसा रखो और मेरी बात मानो। और मैं उस पर तुमसे किसी इजरत का तालिब नहीं हूँ। तो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते कि मैं उस पर तुमसे किसी इजरत का तालिब नहीं हूँ, मैं किसी भी इजरत का तालिब नहीं हूँ तुमसे, कोई भी चीज़ नहीं मांगता हूँ, कोई माल दौलत नहीं मांगता हूँ। सेम वही जो पिछले रसूलों ने कहा था, नूह अलैहि सलाम, हूद अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम। और मैं उस पर तुमसे किसी इजरत का तालिब नहीं हूँ, नहीं है मेरी इजरत मगर तमाम जहानों के रब के जिम्मे, मेरी इजरत जो है तमाम जहानों के रब के जिम्मे है। जो भी मुझको अता करना है वो अता करेगा, मैं बदले में तुमसे कोई पैसे या कोई किसी तरह का माल या दौलत तलब नहीं करता हूँ। क्या तमाम जहानों में तुम मर्दों के पास जाते हो, क्या तमाम जहानों में तुम ऐसी कौम हो जो मर्दों के पास जाते हो, मर्दों के पास जबकि फितरी रास्ता छोड़कर मर्दों के पास शहवत के लिए जाते हो। क्या तमाम जहानों में तुम मर्दों के पास जाते हो और तुम छोड़ देते हो जिनको तुम्हारे लिए पैदा किया गया है, तुम्हारे लिए और जिनको पैदा किया गया है, औरतों को छोड़कर मर्दों के पास क्यों जाते हो, इस तरह से लूत अलैहिस्सलाम ने उनके कौम को पूछा। जिनको तुम्हारे लिए पैदा किया गया है, तुम्हारे रब ने तुम्हारे बीवियों में से, बल्कि तुम तो हद से बढ़ने वाले लोग हो, तुम्हारे बीवियों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जा रहे क्यों जाते हो, क्योंकि तुम तो हद से बढ़ने वाले लोग हो। इन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तुम बाज ना आते तो यहाँ से निकाल बाहर किए जाओगे। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ, मत बोलो हमको वरना तुम निकाले जाओगे यहाँ से। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे इन तौर तरीकों से सख्त बेजार हूँ। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी बेजार हो गया हूँ तुम्हारे तरीकों से, तुम लोग गलत रास्तों पर चल रहे हो, मैं ऑलरेडी बेजार हूँ तुम्हारे तौर तरीकों से। परवरदिगार तू निजात दे मुझे और मेरे घर वालों को इनके अमल से। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार
तो मुझे और मेरे घर वालों को इनसे निजात दे, इनके अमल से, इनसे बचा मुझे हमसे। तो हमने निजात दी उसको भी और उसके घर वालों को भी। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को और नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों को वहां से निकाल दिया, उनको निजात दे दी, बचा लिया उस कौम से, सिवाय एक बूढ़ी के जो पीछे रहने वालों में थी, सिवाय एक बूढ़ी औरत के जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, क्योंकि वो उन पर ईमान लेकर नहीं आई थी। सिवाय एक बूढ़ी के जो पीछे रहने वालों में थी। फिर हमने उठाकर पटक दिया बाकियों, बाकियों को क्या क्या उठाकर पटक दिया। तो उनके ऊपर क्या सजा आया था, वो जो जमीन थी वहां की, वो जमीन को उठाकर उल्टा कर दिए थे, उठाकर पटक दिए थे अल्लाह ताला वो जमीन को। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते क्या किए थे, उठा दिए थे, उठाकर ऊपर की तरफ, नीचे, नीचे का तरफ ऊपर, मतलब ऐसी जमीन है तो ऐसा उठा के ऐसा कर पलटा दिए थे, उसको सीधी उल्टी कर दिए थे वो जमीन को। फिर हमने उन्हें उठाकर पटक दिया बाकियों को। और हमने बरसाई उन पर एक बारिश भी बरसाई, तो बहुत ही बुरी थी, बुरी बारिश थी वो बारिश, जिन लोगों पर बरसती जिन्हें खबरदार कर दिया गया था। इन लोगों पर बरसी थी वो, सौदाम के लोगों पर, जिन्हें ऑलरेडी अल्लाह ताला ने खबरदार कर दिया था लूत अलैहिस्सलाम के जरिए। यकीनन उसमें एक बड़ी निशानी है, लेकिन उनकी अक्सरियत मानने वाली नहीं है। यकीनन ये इसमें क्या है, निशानी है, लेकिन लोग मानते नहीं है। और यकीनन आपका रब बहुत जबरदस्त है, निहायत रहम वाला। अल्लाह ताला क्या है, बहुत जबरदस्त रहम करने वाला है। इसका है। और इब्राहिम ने कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह के सिवा जो बुत बना रखे हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वीडियो में हमने देखा। और इब्राहिम ने कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह के सिवा जो बुत बना रखे हैं, ये तो बस दुनिया की जिंदगी में तुम्हारे आपस की मोहब्बत की वजह से है। ये बुत क्या है, आपस की मोहब्बत है तुम्हारी, इस वास्ते तुम लोग आपस की मोहब्बत में बना के इबादत कर रहे हैं इनकी, मोहब्बत की वजह से। फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे पर लानत भेजोगे, क़यामत के दिन तो एक दूसरे पर लानत भेजोगे, तुम एक दूसरे को पहचानोगे भी नहीं। और तुम सबका ठिकाना आग होगा, तुम सबका ठिकाना क्या होगा, आग होगा, यानी कि जहन्नम में, दोजख में जाएंगे। तुम्हारा आग होगी, तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा, और उसमें तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं होगा। तो लूत अलैहिस्सलाम उस पर ईमान लाया, और उसने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस पर ईमान लाया, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए। और उसने, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम नहीं मानी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हिजरत कर रहा हूँ मैं अपने रब की तरफ। यकीनन वो जबरदस्त कमाल हिकमत वाला है, अल्लाह ताला क्या है, बहुत हिकमत वाला है। अब हिजरत करने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उसके उनके ऊपर जो अदाब आया या नहीं आया, वो खैर अल्लाह आलम, इसके हमको डिटेल्स नहीं मिलते हैं। इब्राहिम उसके बारे में आगे बात नहीं है। अब तक क्या हुआ था, हूद अलैहिस्सलाम के हिजरत कर गए, उनके कौम पर ईमान आया, अजाब आया। सालेह अलैहिस्सलाम हिजरत कर गए, उनके कौम पर अजाब आ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके वहां से चले गए, उसके बाद उनकी कौम का क्या हुआ, वो लोग ईमान लाए या नहीं लाए, या उनके ऊपर अजाब आया, वो खैर अल्लाह आलम, उसके डिटेल्स नहीं मिलते हैं। लेकिन वो हिजरत कर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम केनान की तरफ, और लूत अलैहिस्सलाम सोडोम की तरफ। और हमने उसे और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम, और भी इसहाक अलैहिस्सलाम उनके छोटे बेटे, और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किया, और उसकी नस्ल में हमने रख दी नबूवत। और उनके नस्ल में क्या किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबूवत रख दी। उसके बाद तमाम नबी क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से ही आए, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों में से नहीं थे, उनकी कौम से थे, बल्कि स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग उनके भतीजे थे, पर उनके नस्ल में से नहीं थे, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम ऑलरेडी मेंशन थे, ऑलरेडी आ गए थे वहां पर, ऑलरेडी पैदा हो चुके थे। तो वो उनकी नस्ल में से नहीं थे, पर उनके अलावा तमाम नबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही थे। और उसकी नस्ल में हमने रख दी नबूवत और किताब, और हमने उसे दुनिया में भी उसका अजर अता किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या किया, दुनिया में भी अजर अता किया, और आखिरत में भी, अता किया।
वो यकीनन हमारे नेक बंदों में से होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या है, अल्लाह के आखिरत में भी नेक बंदों में से होंगे। और लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा, और लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास गए और अपनी कौम के लोगों से यानी कि सोदोम के लोगों से कहा कि तुम लोग ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब कर रहे हो जो तुमसे पहले तमाम जहां वालों में से किसी ने नहीं की। तो तुमसे पहले तमाम जहां वालों में किसी ने ये गुनाह नहीं किया, हम जिस परस्ती का तुम ऐसे काम करते हो, मर्दों के पास आते हो, तुमसे पहले तमाम जहां वालों ने किसी ने नहीं की। क्या तुम आते हो मर्दों के पास और फितरी रास्ता छोड़ते हो? क्या तुम मर्दों के पास आते हो शहवत के लिए और फितरी रास्ता यानी कि अपनी औरतें अपनी बीवियों को छोड़कर छोड़ते हो? और ये मजमूम फाल तुम अपनी मजलिसों के अंदर करते हो, और मजलूम फाल यानी कि मतलब ये गंदे काम तुम अपनी मजलिसों के यानी कि अपनी सोसाइटीज के अंदर भी करते हो। तो उसकी कौम का कोई जवाब इसके सिवा नहीं था। तो उनकी कौम का सिर्फ यही जवाब था कि इन्होंने कहा कि तुम ले आओ हम पर अल्लाह का अजाब अगर तुम सच्चे हो। वही बात कि हम तो छोड़ने वाले नहीं है, तुम ले आओ अल्लाह का अजाब अगर आने वाला हो तो हमारे ऊपर। उसने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा उस मुफसिद कौम के खिलाफ। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार इस कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फर्जदादे इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए यानी कि मैसेज पहुंचाने वाले, फर्जदादे यानी कि मैसेज पहुंचाने वाले या फिर फरिश्ते फरिश्ते लेकर मैसेज पहुंचाते थे अल्लाह का नबियों तक। लेकिन आयत में फरिश्तों का लफ्ज नहीं है, फर्जदादे यानी कि मैसेज पहुंचाने वाले। और जब हमारे फर्जदादे इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए, इन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास क्या हुआ, फरिश्ते बशारत लेकर यानी कि खुशखबरी लेकर आए, तो इन्होंने कहा कि हम उस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं, यकीनन उसके लोग बड़े जालिम हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग हैं हम लोग उन पर आजाब लाने वाले हैं, हम उस बस्ती को हलाक कर देने वाले हैं, उस बस्ती के तमाम लोग क्या होंगे, मिट जाएंगे। यकीनन उसके लोग बड़े जालिम लोग हैं, वो लोग बहुत बड़े जालिम। इब्राहिम ने कहा कि उसमें लूत भी तो है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसमें लूत अलैहिस्सलाम भी तो है, वहां पर लूत भी तो है उसमें, उन लोगों में। इन्होंने कहा कि हमें खूब मालूम है कि कौन कौन उसमें है, हम जरूर बचा लेंगे उसे भी और उसके घर वालों को भी। तो फरिश्तों ने कहा कि हम लूत अलैहिस्सलाम को, हमें मालूम है कि लूत वहां है, हम लूत अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों को क्या करेंगे, निजात दे देंगे, बचा लेंगे। इब्राहिम ने कहा कि उसमें लूत भी तो है। इन्होंने कहा कि हमें खूब मालूम है कि कौन कौन उसमें है, हम जरूर बचा लेंगे उसे भी और उसके घर वालों को भी, सिवाय उसकी बीवी के, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के सिवाय, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई थी, उनके ऊपर भी वही अजाब आया था। उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में होगी। और जब हमारे और हम जब हमारे फरदादे लूत के पास पहुंचे, उसके बाद वहां से निकल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से निकल के वो फरिश्ते क्या किया, लूत अलैहिस्सलाम के पास गए, पहुंचे तो वो उनकी वजह से बहुत परेशान और दिल तंग हुआ। तो लूत अलैहिस्सलाम की क्या हुआ, उनकी वजह से बहुत परेशान हुए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स वो लोग इंसान के रूप में गए थे और वो लोग हम जिस परस्ती गए थे तो मर्दों को देखकर वो लोगों की नीयत खराब हो गई थी। तो उसकी वजह से लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए थे। ये इस तरह से कुरान और हदीस में नहीं मिलता है, पर अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स पुराने बुकों के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक इस तरह हुआ था। कुरान हदीस में सिर्फ इतना है कि और जब हमारे फरजादे लूत के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से बहुत परेशान और दिल तंग हुआ, बहुत परेशान और दिल तंग हुआ। इन्होंने कहा कि आप खौफ ना खाएं। तो फरिश्तों ने कहा कि आप खौफ ना करिए और ना आप रंजीदा हों और ना परेशान होइए, हम तो निजात देने वाले हैं आपको भी और आपके अहले खाना को भी। हम आपको और आपके घर वालों को क्या करने, निजात देने, यहाँ से बचाने के लिए आए हैं, सिवाय आपकी बीवी के, आपकी बीवी के सिवाय, क्योंकि उनकी बीवी ईमान नहीं लाई थी। आप सिवाय आपकी बीवी के, वो होगी पीछे रह जाने वालों में से, वो पीछे रह जाने वालों में से है।
बेशक हम नादिल करने वाले हैं इस बस्ती वालों पर एक अजाब, आसमान से आसमान से एक अजाब आने वाला है इनके ऊपर, इस वजह से कि वो बदकारी करते थे, इस वजह से कि वो बदकारी करते हैं, बुरे काम करते हैं। और हमने छोड़ दी उसमें से एक वादे निशानी उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या क्या, अक्ल रखने गौर करने वालों के ऊपर उसमें एक निशानी रख दी। और लूत को भी जब उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम फहिश काम करते हो और तुम देखते भी हो, तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या किया अपनी कौम से, तुम फहिश काम यानी कि बुरे काम गंदे काम करते हो और देखते भी हो साथ में। क्या तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत रानी के लिए औरतों को छोड़कर, तुम लोग क्या करते हो शहवत के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ क्यों जाते हो, बल्कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, बल्कि तुम लोग क्या हो, बड़े ही जाहिल काम करने वाले लोग हो। तो उसकी कौम का कोई जवाब नहीं था मगर ये कि इन्होंने कहा, निकाल बाहर करो लूत के घर वालों को अपने शहर से, लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक बनते हैं, बहुत पाक बनते हैं, बहुत साफ दिल के लोग बनते हैं ये लोग। तो हमने निजात दी उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसकी बीवी के, जिसके बारे में हमने तय कर दिया था, जिसके बारे में क्या किया था अल्लाह ताला ने ऑलरेडी तय कर दिया था। तो उनके बीवी के सिवाय उनको और उनके घर वालों को, उनके बेटियों को बचा लिया, जिसके बारे में हमने तय कर दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में होगी। तो उनके ऊपर हमने एक बारिश बरसाई, तो बहुत ही बुरी बारिश थी जो इन लोगों पर बरसाई गई, जिनको खबरदार कर दिया गया था। तो इन लोगों के ऊपर क्या हुआ, बारिश बरसाई गई। ये बारिश कंकरों की, पत्थरों की बारिश थी, पत्थरों की बारिश थी। कुरान में इस तरह से है, अगर साइंटिफिक रीजन में थे तो पत्थरों की बारिश यानी कि कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन खैर खुद वल्लाहु आलम वो पत्थरों की बारिश थी। तो उनके ऊपर हमने एक बारिश बरसाई, तो बहुत ही बुरी बारिश थी जो उन लोगों पर बरसाई गई जिनको खबरदार कर दिया गया था, पहले ही खबरदार कर दिया था। और इब्राहिम के पास हमारे फरजाते बशारत लेकर आए, फरिश्ते क्या क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत यानी कि खुशखबरी लेकर आए। इन्होंने कहा सलाम, तो आग फरिश्तों ने आकर क्या कहा, सलाम। इब्राहिम ने भी सलाम किया। फिर कुछ देर ना गुजरी कि आप ले आए एक बछड़ा बुना हुआ, तो इंसानी शक्ल में आए थे। तो एक बछड़ा, भुना हुआ बछड़ा यानी कि भुना हुआ गोश्त लेकर आए थे उनके मेहमान नवाजी के लिए, उनको खिलाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके आके उनके सामने पेश किया। फिर जब आपने देखा कि उनके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपने उनमें अजनबियत पाई, तो वो लोग खा नहीं रहे थे उसको, क्योंकि वो लोग फरिश्ते थे, वो लोग ऑब्वियसली वो नहीं खाएंगे, खाते नहीं थे। फिर जब आपने देखा कि उनके हाथ से उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपने उनमें अजनबियत पाई, उन लोगों में क्या की, अजनबियत पाई, अलग तरह से एक कुछ फील कर रहे हो कि वो लोग नहीं खा रहे हैं बोल के, और उनकी तरफ से एक खौफ महसूस किया। और क्या क्या, एक खौफ महसूस किया कि क्या हुआ, उन लोग क्यों नहीं खा रहे इस तरह से। इन्होंने कहा, आप डरिए नहीं, असल में तो हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। तो फरिश्तों ने कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और आपकी बीवी खड़ी थी हंस पड़ी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी कि सारा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़ी थी। हाजरा अलैहिस्सलाम को तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के की जमीन में छोड़ दिए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वहाँ पर उनकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम थी। और आपकी बीवी खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसे बशारत दी इसहाक की, और इसहाक के बाद याकूब की, इसहाक अलैहिस्सलाम की और याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे दी फरिश्तों ने। उसने कहा यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, हाय मेरे साथ मत, हाय मेरी शामत, क्या अब मैं बच्चा जनूंगी जबकि मैं निहायत बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो सौरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाय मेरी शामत आई, क्या अब इस उम्र में बच्चा जनूंगी, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं।
और ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं। मेरे शोहर भी क्या है, बूढ़े हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो चुके थे। ये तो बहुत अजीब है, तो इस उम्र में जन्मूंगी क्या मैं बच्चा, बोल के सारा अलैहिस्सलाम ने पूछा। तो फरिश्तों ने कहा, क्या आप ताज्जुब करती हैं अल्लाह के फैसले पर? अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब करते हैं क्या आप? अल्लाह के फैसले पे शक कर रहे हैं आप, बोल के इस तरह से फरिश्तों ने सारा अलैहिस्सलाम को पूछा। फैसले पर अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हों तुम पर, ए नबी के घर वालों। तो फरिश्तों ने दुआ दी कि ए नबी के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हों। यकीनन अल्लाह लायक हम और बुजुर्गी वाला है। तो फरिश्तों ने कहा, क्या आप ताज्जुब करती हैं अल्लाह के फैसले पर? अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हो तुम पर, ए नबी के घर वालों। यकीनन अल्लाह लायक हम और बुजुर्गी वाला है। फिर जब इब्राहिम का खौफ जाता रहा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उन लोगों को पता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि फरिश्ते हैं, तो उनका खौफ चले गया। पहले खौफ हो रहा था कि कौन अजनबी है, ये कोई अजनबी है, कुछ करेंगे क्या, घर को आ गए इस तरह से बोल के। फिर जब फरिश्ते हैं मालूम हुआ, उनका खौफ चले गया। तो फिर जब इब्राहिम का खौफ जाता रहा और ये बशारत भी पहुंच गई, तो आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया हमसे कौमे लूत के बारे में। तो उसके बाद क्या किया, कौमे लूत के बारे में बहस करना शुरू किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात करना शुरू की। यकीनन इब्राहिम बहुत ही बर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की जनाब में रुजू करने वाले थे। तो ए इब्राहिम छोड़िए उस मामले को, अब तो आपके रब का फैसला आ चुका है। तो ये फरिश्तों ने कहा कि रब का फैसला हो चुका है, अब उसके बारे में बात करके कुछ भी माफी वाफी मांग के कुछ भी फैसला नहीं है, आपके रब का फैसला आ चुका है। ए इब्राहिम छोड़िए उस मामले को, अब तो आपके रब का फैसला आ चुका है और उन पर वो अजाब आकर ही रहेगा जिसे लौटाया नहीं जा सकेगा। और वो अजाब अब आके ही रहेगा उनके ऊपर, क्योंकि अल्लाह का फैसला आ चुका है। और जब आए हमारे फर्जदादे लूत के पास, तो उसके बाद जब फरिश्ते वहां से निकल कर लूत अलैहिस्सलाम के पास गए, तो आप उनकी वजह से बड़े गमगीन हुए और आपका दिल बहुत तंग हुआ, बहुत दुखी हुए और तंग दिल हुआ। और आप कहने लगे कि आज तो बहुत सख्ती का दिन है, बहुत सख्ती का दिन है था, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम के पास जब वो लोग आए तो इंसानी शक्ल में आए थे। तो मर्दों को देखकर वहां के लोग क्या हुए, शहवत के लिए उनके पास आके उनको तंग परेशान करने लगे। और ऐ आपकी कौम के लोग, और आए आपके कौम के लोग दीवानावार दौड़ते हुए आपकी तरफ। तो जब उन आपकी कौम को पता चला कि कुछ मेहमान आए हुए हैं लूत अलैहिस्सलाम के घर में, कुछ मर्द आए हुए हैं, फरिश्ते थे मगर मर्दों की शक्ल में आए थे। तो जब उनके कौम को पता चला तो वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आए आपकी। और आए आपके कौम के लोग दीवानावार दौड़ते हुए आपके तरफ, और वो पहले से ही गंदे कामों में मलूस थे। पहले से ही क्या करते थे, गंदे काम करते थे। उसके बाद यहाँ पर आए इनके पास। लूत ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां हैं, वो तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मर्दों का रुख क्यों करते हो, ये मेरी बेटियां हैं, हलाल रास्ता है तुम्हारे लिए, अगर आना है तो इनके पास आओ। ऑब्वियसली निकाह करने के बाद, बिना निकाह के नहीं, वो जाहिर सी बात है। ए मेरे कौम के लोगों, ये मेरी बेटियां हैं, वो तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं। तो अल्लाह का खौफ करो और मुझे मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा ना करो। और अल्लाह का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में रुसवा ना करो, यानी कि परेशान ना करो, मेरे मेहमानों के सामने मुझे परेशान ना करो। क्या तुम में कोई एक आदमी भी नेक चलन नहीं है? क्या तुम में एक आदमी भी नेक नहीं है जो इस बात को समझ सके? इन्होंने कहा कि तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारे इन बेटियों पर हमारा कोई हक नहीं, तुम्हारे बेटियों पर हमारा कोई हक नहीं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बेटियों में कुछ भी, तुम्हारा मालूम है ऑलरेडी। और तुम खूब जानते हो जो हम चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं तुम्हारा मालूम है खूब, तुम खूब जानते हो हम किसके साथ चाहते हैं। तो लूत ने कहा, लूत ने कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले के लिए कोई ताकत होती। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश कोई ताकत होती मेरे पास कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता, या कोई मजबूत सहारा होता जिसकी मैं पनाह ले सकता था।
تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. تو فرشتوں نے اس وقت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ تک نہیں پہنچیں گے. آپ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں. رات کے حصے میں مطلب جب رات ہوتی رہیں گی، اندھیرا رہے گا تو کسی کو معلوم نہیں ہوا، ویسے آپ نکل جائیے. آپ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، ہجرت کر لو، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور پیچھے مڑ کر نہ کو دیکھو کوئی بھی آپ لوگوں میں سے، سوائے آپ کی بیوی کے. سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ آپ کی بیوی کے اوپر بھی وہی عذاب آیا تھا، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے. جو ان سب پر جو مصیبت آنے والی ہے وہ اس پر بھی آئے گی. ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح کے ٹائم ان کے اوپر یہ عذاب آنے والا ہے، تو اس سے پہلے رات کے حصے میں آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کو نیچا کر دیا. تو جب اللہ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زمین کو الٹی پلٹی کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر کر کے پٹک دیا ان لوگوں کو، جو ہم نے پہلے دیکھا. اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، اور بارش برسائی تہ بتہ کنکریوں کی. وہ عام بارش نہیں تھی، میں نے ابھی کہا پتھروں کی بارش تھی وہ. تو سائنٹیفک بھاشا میں کامٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایسٹرائڈ جو بھی ہے، پر یہاں پر ذکر ہے کہ کنکریوں کی بارش تھی. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر اس کے اوپر کو نیچا کر دیا، اور ہم نے اس کے اوپر کو نیچا کر دیا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تہ بتہ کنکریوں کی. وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے. یہ کیا تھا؟ تمہارے رب کی طرف سے نشان تھا. اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں، اور ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، پھر بھی وہ لوگ مگر مانتے نہیں تھے. تو یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.